next, that is a neo-Mendelism or a deviation of particularly laws, very important. One is that is a gene interaction. Okay, gene interaction very important. That is a gene interaction. Gene interaction are two types. Gene interaction are two types. One is that is a intragenic and one is intergenic. Very important is here, that means particularly in intragenic, okay, also called as the particularly interallelic, but occur between alleles of that is the same locus. Okay, very important, that is a same gene भी बोल सकते हैं अपन इसको, तो that is very important. occur between same, okay, occur between that is a between allele, occur between allele of same gene. Okay, और ये क्या हो जाएगा, that is a intergenic में that is a occur between alleles of different, that is a different gene. So there are two phenomena here is, that is means particularly gene interactions में, one is intragenic and another is intergenic, occur between alleles of same gene. Okay, and here occur between allele, that is very important, that is a allele, that means allele of different gene. Okay, so many example here, that means particularly in the example of the particular intragenic, that is a codominance. Okay, that is a codominance. Then incomplete dominance, very important, incomplete dominance. Okay, this is an example, and particularly अपने को occur between alleles of same gene है, तो उसमें codominance है और incomplete dominance है. Okay, then intergenic. Okay, intergenic occur between allele of different gene, very important, यानी कि different gene है, तो that means particularly यहाँ पर जो examples मिलेंगे अपने को, मैं एक example यहाँ लिखता हूँ, that is very important, that is a epistasis, very important. So one is intergenic and one is intragenic. gene interactions में there are two types. Okay, और ये दो types very important होते हैं. Okay, next very important here, that is gene interactions के बारे में भी अपन ने देखा है, clear है. Gene interaction are, there are two types, that is intragenic and intergenic. Once again I'll tell you about the particularly gene interactions. So one is intragenic, another is intergenic. Okay, and occurs between allele of same gene, you know the about. Then example है, that is a codominance, incomplete dominance and multiple alleles. Study करना है अपने को इसके बारे में. Okay, and intergenic means occur between allele of different genes on the same or a different chromosome. You know the, that is अपन ने देखा था लोकसाई वगैरह पे. Okay, okay, very important, अपन ने अभी देखा था, that is a gene interactions. Okay, so many examples here about the intragenic and intergenic. Okay, here intergenic, that is a, you know the about the occur between allele different genes on the same or different chromosome. Here example, that is a epistasis, pleiotropy, polygenes and complementary genes. Also here, that is a example of, that is a codominance, incomplete dominance and multiple alleles. Very important here, that means gene interaction. So now study about the first, that is a codominance, incomplete dominance and multiple alleles. Now about the particularly अपन ने देखा था, that is a intragenic. Okay, that means particularly first topic, that is a intragenic, और उसका example that is a incomplete dominance. Very important, incomplete dominance means particularly there is very important parental generation में एक flower लिया गया, that is a red. Okay, and another that is a white. Very important. So obviously parental generation, that means capital RR, it is dominant over the white. तो दैट्स मीन्स particularly ये एक तरीके से ये दैट इज अ स्मॉल लेटर्स में है, particularly यहाँ व्हाइट कलर को शो किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट. देन particularly स्मॉल RR, ये व्हाइट फ्लावर है, रेड फ्लावर, दैट इज अ कैपिटल RR. तो दैट्स मीन्स इन केस में दैट इज अ गमेट्स लिए गए. तो फर्स्ट इज दैट इज अ कैपिटल R, स्मॉल r. ओके, देन F1 जनरेशन देखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज F1 जनरेशन देखा गया. तो F1 जनरेशन में हियर ऑल पिंक, देयर मीन्स हियर इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर शोन.
ओके क्योंकि यहाँ क्या दिखा है, दैट इज अ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स दिखा है, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इसका क्रॉस किया गया पर्टिकुलरली F1, दैट इज F1 जनरेशन देखा गया, क्लियर है। F1 जनरेशन के बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी, फिर उसको पनेट स्क्वायर में देखा गया, क्लियर है। व्हाट एग्जैक्टली इसका जीनोटाइप रेशो एंड फिनोटाइप रेशो क्या होना चाहिए, ओके तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑल पिंक मिले, यानी कि पर्टिकुलरली वो सप्रेस, क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पर क्या पर्टिकुलरली डोमिनेंट कलर ज्यादा यानी कि डोमिनेंट का मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ इंटरमीडिएट, क्योंकि ऑल पिंक मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रेड एंड व्हाइट का क्रॉस करने के बाद दैट इज ऑल पिंक, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन, यू नो दी अबाउट, एंड पर्टिकुलरली उसमें से कितने मिले, दैट इज दैट इज 2 आर पिंक, 1 इज रेड, okay, that is a phenotype ratio and genotype ratio, so that means 1 is red, 2 that is a 1 is red, okay, and 2 are pink color and 1 is that is a white, so that means particularly 1 is white, so that's genotype ratio and phenotype ratio it is 1:2:1, so that means particularly here very important, क्योंकि डोमिनेंस ये एक तरीके से डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके तो दैट्स मीन्स एक तो रेड होने चाहिए पूरे, यहाँ पर तो ऑल पिंक आए हैं, क्लियर है। तो ये एक तरीके से होता है दैट इज इंट्राजेनिक, ओके इंट्राजेनिक्स मीन्स यू नो दी अबाउट द इंटरैक्शन दैट इज ऑकर बिटवीन अलील्स ऑफ सेम जीन, ओके दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इंट्राजेनिक में ऑकर्स बिटवीन पर्टिकुलरली इन द सेम जीन, okay so that is very important between alleles of same gene, so that means particularly this is about the incomplete dominance. Here very important also that is there is a segregate but there is without mixing, okay यहाँ without mixing है, वो segregate तो हुआ है but without mixing, ये एक point हमेशा ध्यान में रखना। और particularly here intermediate character are shown, okay so that means और genotype ratio and phenotype ratio are particularly same, okay so this type of theory particularly it is not favor in the blending theory of inheritance, so that is very important, so that means इस तरीके का कुछ यानी कि मिलता नहीं है, इसलिए अपन वहां पर एक ही मिला है और ऑल आर पिंक, तो दैट इज अ इंटरमीडिएट कैरेक्टर आल्सो, दैट इज इसलिए इसको कहा जाता है दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिराबस जलापा दैट इज अ दैट इज अ मिराबिलस जलापा दैट इज अ 4 o'clock प्लांट कहा जाता है उसको, क्लियर है। Then particularly also one more example that is a snapdragon plant, okay very important example that is a snapdragon in 4 o'clock plant का binomial nomenclature है, that is a jalapa and that is Antirrhinum majus, it is a binomial nomenclature of the snapdragon, so this is show the particularly incomplete dominance, and particularly this type of theory it is not favor in the blending theory of inheritance, you know the about, so this is about the incomplete dominance, okay now next example of codominance, it is also very important, particularly codominance that means particularly cattle, that is the color of cattle के बारे में यानी कि बताया गया है यहाँ पर, और वो cattle का कलर यानी कि particularly उनके बीच में क्रॉस कराया गया, and particularly they can equally express, very important, okay जीन उनके क्योंकि वो allelomorphic थे, क्लियर है, तो that means they express equally, here very important also that means particularly parental generation लिया गया, that is a red cattle and particularly that is a coat color, very important, that is a skin color, okay so that means red and white को लिया गया, क्लियर है। देन पर्टिकुलरली F1 जनरेशन में यहाँ पर यानी कि सम व्हाइट के कैरेक्टर्स मिले, सम रेड के कैरेक्टर मिले, ओके तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गमिट्स लेने के बाद देन गमिट्स में उनका फिर सेल्फिंग पर्टिकुलरली उनके बीच में हाइब्रिड कराया गया, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली हाइब्रिड करने के बाद F2 जनरेशन में मिला दैट इज अ रेड रो, दैट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ रोन, दैट्स मींस मिक्सिंग, ओके हियर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो किया गया था, यहाँ पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज दोनों अलील एक तरीके से एक्सप्रेस हुए इन दी कोडोमिनेंस, एंड कोडोमिनेंस इट इज वेरी क्लासिकल एग्जांपल फॉर दी पर्टिकुलरली
इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली रेड है, यहाँ पर दो रोन मिले, ओके, दो, दैट्स मीन्स सम व्हाइट कलर एंड सम रेड कलर, ओके, तो दैट्स मीन्स एक रेड मिला, तो दैट्स मीन्स 1:2 हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1:2 2:1, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली phenotypic ratio, okay, and particularly phenotypic ratio and genotypic ratio ratios are identical here, okay, तो phenotypic ratio and particularly genotypic ratio एक तरीके से यहाँ पर भी identical है, but very important in incomplete dominance, in complete dominance there is a intermediate character shown, you know the about, okay, and particularly here no intermediate character shown, okay, but very important phenotype ratio and genotype ratio in complete dominance and complete dominance are same, okay, but यहाँ पर that means particularly here one more important thing, that means red and white एक साथ express हुए, that is a equally express, so this is about the example of codominance. Okay, next about the multiple alleles, okay, more than two alternative forms of a gene in a population occupying the same locus, okay, very important, on a chromosome or its homology, you know the homologous chromosome or same loci अपन ने देखा है, clear है, or known as, okay, are, that is a very important, are known as multiple alleles, so that means example देते हैं अपन यहाँ पर, example it is a ड्रोसोफिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रोसोफिला है here, that means very important, अभी यहाँ पर जो भी ड्रोसोफिला है, क्लियर है, सो मेनी विंग्स की वेराइटी ऑन द सेम, यानी पर्टिकुलरली एक क्रोमोसोम रहेगा और उस पे लोसाई पे सेम जीन्स वो रहेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्युपाई, दैट इज ऑक्युपाइंग सेम लोकस, ओके, तो दैट इज अ वेस्टिजियल विंग्स, नॉर्मल विंग्स, नॉच विंग्स, सो मेनी विंग्स, एक यानी कि पर्टिकुलरली सो मेनी वेराइटीज ऑफ विंग्स प्रेजेंट रहेगी, बट उनकी जो भी अलील से एक ही लोकस पे क्या मिलेंगे अपने को, सिचुएटेड मिलेंगे, क्लियर है, और वेराइटी ऑफ विंग्स यानी कि ड्रोसोफिलिया के विंग्स में अपने को दिखेगा। देन ऑल्सो वन मोर एग्जांपल, दैट इज अ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कुछ फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होते हैं, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर दैट्स मीन्स IA है, क्लियर है, ओके, और मैं इसको ही बोल रहा हूँ दैट इज IA, और मैं पर्टिकुलरली दैट इज IA और IA, क्लियर है, मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर एक A और I, तो ये जीनोटाइप हो गया, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और मैं IB और II, क्लियर है, कितने जीनोटाइप हो गए, 1 2 3 4, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यानी कि यहाँ पर जीनोटाइप्स है, क्लियर है, तो जीनोटाइप्स में यानी कि 1 2, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, देन IB, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज II, तो एक तरीके से ये जीनोटाइप्स से, क्लियर है, अभी अपन इसको फिनोटाइप्स में देखें तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली A B ये सेम लोकाई पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सेम लोकस पे मैं बोल रहा हूँ, सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉजी, तो दैट्स मीन्स ड्रोसोफिला में अपन ने देखा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी अपन वही देख रहे, क्लियर है, और अभी फिनोटाइप देखेंगे तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली AB एंड O, क्लियर है, फिनोटाइपिक रेशो, तो दैट इज अ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके, यानी कि पर्टिकुलरली जीनोटाइप कितने और फिनोटाइप कितने हैं, क्लियर है, जीनोटाइप यहाँ पर शो किए जाते हैं पर्टिकुलरली ऑन दी सेम लोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोटाइप तो विजिबल कैरेक्टर होते हैं, वो तो जीन पे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट है, ऑन दी सेम लोकस, तो दिस इज ऑल्सो वेरी एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल alleles, तो दैट्स मीन्स मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्युपाई द सेम लोसाई, और उसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, वन इज ड्रोसोफिलिया एंड अनदर दैट इज अ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसमें भी क्या है, तो दैट इज अ विंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉच विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, ओके, नॉर्मल विंग्स, सो मेनी, ओके, तो दिस इज अबाउट द मल्टीपल alleles.
Okay, now about the epistasis. Okay, you know the intergenic interaction. Okay, intergenic interactions देखा था अपन ने. There are two particularly genetic interactions देखा था. There are two types. So that means intergenic and intragenic. तो this is a intergenic suppression. That means particularly अपन इसके बारे में बात करेंगे about the suppression. But there are two types of, that is a epistasis. One is dominant type and another recessive type. That is very important here. One more, that means occur when a dominant allele at one locus. Okay, एक locus पे क्या है particularly, समझ लो. एक, this is a particularly chromosome. Okay, this is chromosome, very important. Okay, then at one locus clear है, produce particular phenotype. Okay, regardless of genotype at second locus. तो that means यहां पर समझ लो ऊपर में कुछ तो भी एक जीनोटाइप है, चलो ए बोल देते हैं अपन. ओके, और यहाँ पर एक रिसेसिव टाइप का है. क्लियर है, यहाँ ए है और यहाँ बी है. क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट कैन एक्सप्रेस, इट कैन सप्रेस. क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड एज द epistatic gene. Okay, this is called as the epistatic gene. Okay, and this is called as the hypostasis, that is a hypostasis gene. तो दैट मीन्स पर्टिकुलरली ये कंडीशन ऐसी है, द सेकेंड जीन कैन एक्सप्रेस इस फिनोटाइप ओनली व्हेन epistatis locus are homozygous in recessive. मीन्स ये होमोजाइगस एंड रिसेसिव रहेगा तभी वो एक्सप्रेस करेगा. क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है कि दैट्स मीन्स इट कैन एक्सप्रेस, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सप्रेस हो जाएगा. क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, सप्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, इंटरजेनिक में अभी इसमें एक क्या है, डोमिनेंट है. क्लियर है, वन इज दैट इज अ डोमिनेंट. तो दैट्स मीन्स ये भी सप्रेस एक्सप्रेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. क्लियर है. अभी दैट इज कंडीशन, द सेकेंड जीन कैन एक्सप्रेस दिस फिनोटाइप ओनली व्हेन epistatis locus homozygous recessive. तो दिस इज अ homozygous in condition and particularly that is a recessive. तो it can be expressed, it can be suppressed. So that means epistasis very important, occurs when a dominant allele at one locus produce particularly phenotype regardless of genotype at second locus. तो that is very important. तो suppress कौन करेगा और express कौन करेगा वो मैंने आपको बता दिया है. क्लियर है about the epistasis. Okay, now next about the particularly epistasis. ओके, अपन epistasis के बारे में बात कर रहे हैं. epistasis के बाद दैट इज recessive epistasis, वेरी इंपॉर्टेंट. recessive epistasis occur when the recessive alleles of a one gene locus suppress. Okay, means which type of alleles, recessive alleles of a one gene locus suppress, वो सप्रेस हो जाएगा. ओके, द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ द अलील्स ऑफ ए अनदर जीन मॉडिफाई रेशियो ऑफ अ रिसेसिव एपिस्टासिस. तो ऑफ, तो अपन उसको बोलेंगे दैट इज अ रिसेसिव एपिस्टासिस. वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेसिव क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली रिसेसिव एले ऑफ वन जीन लोकस सप्रेस हो रहा है. क्लियर है, और ये पर्टिकुलरली एक्सप्रेस नहीं होगा. क्लियर है क्या, वो सप्रेस हो गया तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर एक ही ध्यान में रखना, उसका रेशियो जो होता है पर्टिकुलरली 9:3:4 होता है. और जो अपन ने देखा था दैट इज अ डोमिनेंट, उसमें 12:1:3:1:2. तो दैट इज 1:1. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रिसेसिव एपिस्टासिस एंड पर्टिकुलरली दैट इज रिसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिस्टासिस के बारे में. दैट्स मीन्स एक सप्रेस के बारे में और एक्सप्रेस के बारे में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एपिस्टासिस एंड एपिस्टाटिस. इट इज एग्जांपल फॉर द इंटरजेनिक interaction. You know about the intergenic and intragenic. Okay, so this is about the epistasis. Now next about the particularly that is a pleiotropy. Okay, pleiotropy also that is a intergenic. You know about when a single gene controls two or more different traits. एक ही single
जीन है वो कंट्रोल कर रहा है देर आर टू और मोर ट्रेट्स को. ओके, इट इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिक जीन्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स मीन्स प्लियोट्रॉपिज्म एक एग्जांपल समझने के लिए अपने पास दिया गया, दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया. ओके, पर्टिकुलरली सिकल सेल में जो भी आरबीसीज होते हैं वो पूरे राउंड होने, पर्टिकुलरली राउंड होते हैं. देन सिकल सेल हुआ तो उसका मून शेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है. क्लियर है, यू नो दी अबाउट दिस स्ट्रक्चर और लाइक दिस, ये एक तरीके से अफेक्टेड हो गया. क्लियर है, तो सिकल सेल इस तरीके से कंडीशन आपके बुक में दी गई है. ओके, पेरेंट्स समझ लो सिकल सेल कैरियर एंड सिकल सेल कैरियर से शादी हो गई. क्लियर है, पर्टिकुलरली ये बोला जाता है एक जीनोटाइप रेशो है दैट इज अ पेरेंटल. ओके, एंड एक जीनोटाइप रेशो, तो दैट्स मींस गमीट लिए गए HBA, HBS, HBA एंड HBS. ठीक है, सिकल सेल वाले एंड पर्टिकुलरली जो A वाले हैं दैट इज अ नॉर्मल. तो दैट्स मींस जब ऑफस्प्रिंग मिला, क्लियर है, तो फर्स्ट जो मिला था ये एक तरीके से दैट इज अ जीनोटाइप. क्लियर है, ये जीनोटाइप रेशो है. तो दैट्स मींस HBA और HBA में वन नॉर्मल, सेकेंड इसमें HBA और HBS में सिकल सेल कैरियर. ओके ओके, पर्टिकुलरली अबाउट दी दैट इज सिकल सेल, इट इज एग्जांपल ऑफ दैट इज अ प्लियोट्रॉपी. तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली दो ऑफस्प्रिंग है. क्लियर है, ऑफस्प्रिंग एक तो नॉर्मल मिला है. क्लियर है, एक इसमें सिकल सेल कैरियर है. दैट्स मींस पर्टिकुलरली वो एक्सप्रेस हुआ है, एक इसमें नॉर्मल है तो एक इसमें दैट इज अ सिकल सेल है, तो दैट इज एक्सप्रेस होगा. बट हियर दोनों तरीके से दैट्स मीन सिकल सेल दोनों तरीके से यानी कि डोमिनेंट होगा. क्लियर है, यहां पर भी सिकल सेल कैरियर है, यहां पर भी सिकल सेल है. क्लियर है, तो ये एनिमीज होंगे, दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया. ओके, एंड पर्टिकुलरली इसमें से डाई भी हो सकता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली डाई होने के बाद हियर वेरी इंपॉर्टेंट, डाई होने के बाद इसका रेशो आता है 1:2. वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्योंकि यहां से डाई होने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते अपन, बट एक डाई हो रहा है वहां पर तो उसका रेशो क्या मिलेगा 1:2. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो दिस इज अबाउट द प्लियोट्रॉपी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्लियोट्रॉपी, दैट इज द इंटरजेनिक इंटरैक्शन. यू नो द अबाउट द इंटरजेनिक इंटरैक्शंस. Okay, now about the particularly polygenic or a quantitative inheritance, very important also. There are in human population characters such as a height, skin color and intelligence show the gradation, that is a variation, continuous. There are variation in expression and not only two contrasting expression, very important, two contrasting expression में वो नॉट ओनली उनमें ही नहीं होगा. क्लियर है, कैरेक्टर डिटरमाइन बाय टू और मोर जीन्स पेयर एंड दे हैव एडिटिव और अ कम्युलेटिव इफेक्ट. तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली पॉलीजेनिक के बारे में यही बताया कि टू कॉन्ट्रास्टिंग पर्टिकुलरली टू पेयर्स और दैट इज variation. Okay, variations of that is a character, continuous variation. Okay, in character, that means very important. H. Nielsen Ehl, that is a scientist in 1908, it is a Swedish genetics. उन्होंने इसके बारे में एग्जांपल दिया, एक दिया wheat kernel का, दैट इज अ सीड. ओके, और उन्होंने द डार्केस्ट रेड, उनको जो फर्स्ट इसमें मिला आउट ऑफ 16, 1 आर डार्केस्ट रेड, मीडियम रेड 4 आउट ऑफ 16. ओके, इंटरमीडिएट रेड मिला उनको दैट इज 6 आउट ऑफ 16, लाइट रेड मिला उनको 4 आउट ऑफ 16 एंड व्हाइट मिला 1 आउट ऑफ 16. ओके, यही अपन ने पनेट स्क्वायर में देखा, तो तुम्हारे बुक में भी दिया गया अबाउट दी पनेट स्क्वायर, और उसमें अपन यानी कि एक एक डाले हैं, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली उनको इंटरमीडिएट देके ए बी बी इस हिसाब से करके उनका एक पनेट स्क्वायर भी बना सकते हो. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द व्हीट कर्नेल, आल्सो सेकंड एग्जांपल दैट इज अ ह्यूमन स्किन कलर, डेवनपोर्ट ने दिया था. क्लियर है, आल्सो उसकी स्टडी अपन बाद में करेंगे. ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द दैट इज पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. यू नो द अबाउट द, अभी एक एग्जांपल लिया था अपन ने दैट इज व्हीट कर्नेल का, यू नो दैट इज इट. ठीक है, अभी ह्यूमन स्किन कलर. ओके, ह्यूमन स्किन कलर डेवनपोर्ट इट इज अ साइंटिस्ट, उन्होंने 1910 में इसके बारे में बताया. दैट्स मीन्स उन्होंने जो यूएसए की पॉपुलेशन थी दैट्स मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने क्रॉस यानी कि होने के बाद उन्होंने एक तरीके से वो ऑब्जर्व किया. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उनको दैट इज अ प्योर ब्लैक मिले, 6 डोमिनेंट जीन्स थे उसके अंदर, 1 आउट ऑफ दैट इज 64. तो एक तरीके से उनको दैट इज अ 7 फिनोटाइप मिले.
क्लियर है। और उन्होंने सबको अच्छे से मैच किया, दैट इज अ वेरी डार्क ब्राउन, ओके। मुलैटो मींस थोड़ा सावला, ओके, तुम्हारे बुक में दिया है दैट इज अ इंटरमीडिएट, फेयर, वेरी फेयर एंड प्योर व्हाइट। तो उनके अंदर जो भी जीन्स मिले, 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट जीन्स, 4 डोमिनेंट जीन, 3 2 1 एंड प्योर व्हाइट में नो डोमिनेंट जीन्स, ठीक है। तो दैट्स मीन जो कलर होगा उनका वही रिसीव हुआ होगा, क्लियर है। और पर्टिकुलरली 1 आउट ऑफ 64, 6 आउट ऑफ 64 उन्होंने वो ए कलर ए बी इस तरीके से उन्होंने बनाया और पुनेट स्क्वायर में को सिचुएटेड करने के बाद अपने को ये रिजल्ट मिला, ओके। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन स्किन कलर, दैट इज यू नो देयर आर 2 पेयर्स देयर contrasting character but continuous their expression or a continuous variation in the particularly polygenic, you know the about. So there are 2 example, one is human skin color and another that is a wheat kernel, okay। तुम पुनेट स्क्वायर वगैरह है उसमें अपन वो देख लेंगे एक बार, ओके। दैट मींस पर्टिकुलरली तुम्हारे बुक में भी वो दिया गया है तो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करिएगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली जेनेटिक्स, ओके। सम आल्सो एग्जांपल दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो पर्टिकुलरली, और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी मैं बता दूंगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली जेनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट अबाउट द म्यूटेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द that is the genetic basis of inheritance, also called as the principle of inheritance, okay। तो म्यूटेशन पर्टिकुलरली दिया गया है इन दी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यूनिट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो म्यूटेशंस के बारे में अभी अपन देखेंगे। इट इज म्यूटेशंस मींस पर्टिकुलरली सडन चेंज, ओके, सडन चेंज इन द जीन। म्यूटेशन कॉजेज आर 3 टाइप्स, वन इज दैट इज कॉल्ड एज द जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड पर्टिकुलरली जीनोमिक म्यूटेशन। तो स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू अबाउट द एग्जैक्टली व्हाट इज म्यूटेशन, ओके। First is that is a mutation. Mutation, it is very important, okay। Mutations means one that is very important here, sudden, that is a sudden changes, very important, sudden change होगा, okay, sudden change होगा। Then particularly very important also here, depending, that is a depending upon causes, okay, यानी कि causes 3 टाइप्स के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज दैट इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीन म्यूटेशन, दैट इज अ जीन म्यूटेशन। सेकेंड इट इज क्रोमोसोमल, दैट इज अ क्रोमोसोमल aberrations, that is a very important chromosomal aberration. Then third it is genomic, that is a genomic mutation. So that means particularly it is a 3 types of mutation here, okay। mutations means sudden change, okay। sudden change means particularly जीन में या डीएनए में डैमेज वगैरह और डीएनए रेप्लिकेशंस में वगैरह कुछ ना कुछ होता है, तो ये जीन म्यूटेशंस की वजह से ही होता है। तो दैट्स मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस रहेगा वो चेंज हो सकता है, क्लियर है। और इससे क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा। तो नाउ स्टडी करते अपन एक एक की, दैट इज इन डिटेल में। दैट इज फर्स्ट इज जीन म्यूटेशन, okay। Now about the first, that is a gene mutation. Gene mutations means particularly change in nucleotide sequence. So that means particularly this is a polynucleotide, very important, मैंने बोला था that is a sudden change। तो this is called as the particularly polynucleotide, very important। this is a polynucleotide sequence, very important here। this is a sequence that is here very important, that means particularly gene mutations also so many types, that is a particularly first in gene mutation it is a frame shift mutation। अभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। समझ लो इसका जो भी सीक्वेंस है 5 प्राइम टू दैट इज अ 3 प्राइम, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स मींस AUG, क्लियर है। AUG के बाद दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर GUCCC, ओके, एंड आल्सो दैट इज अ GAC, वेरी इंपॉर्टेंट, GACUAG। समझ लो एक सीक्वेंस, ऐसा एक सीक्वेंस लिया है,
ओके, फ्रेम शिफ्ट करना है मीन्स समझ लो पर्टिकुलरली यहां पर ये जो u है, क्लियर है, ये u चला गया। ओके, तो ये u है चला गया, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये c AUGCC यानी कि पर्टिकुलरली यहां पर क्या था, u था। ओके, तो यहां से ये u चला गया, क्लियर है, तो ये फ्रेम क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली AUGGCC CGA CAG एंड G, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये शिफ्ट हो गया, क्लियर है, दैट्स मीन्स यहां से चले गया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट हो गए एक तरीके से। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर सीक्वेंस बना, क्योंकि ये AUG होता है, दैट इज अ स्टार्ट कोडॉन, ये mRNA के ऊपर अपने को कोडॉन मिलते हैं, क्लियर है, AUG इट इज अ स्टार्ट कोडॉन एंड पर्टिकुलरली दैट इज अ UAG इट इज अ नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है उसको, और दैट इज अ स्टॉप कोडॉन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि यहां से ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड चले गया, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये फ्रेम शिफ्ट हो गई, तो दैट्स मीन्स ये कैसे हो गया, CC GCC CGA C, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के अंदर, एक तो होता है दैट इज अ डिलीशन एंड सेकेंड दैट इज अ एडिशंस। वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डिलीशन एंड एडिशंस मीन्स एग्जैक्टली यहां पर यहां से कुछ डिलीट हो गया, ओके, एंड कुछ ऐड हो जाएगा, क्लियर है, समझ लो इसके जगह पर कुछ ऐड हो गया रहता, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स एडिशंस बोलते अपन इसको। तो दैट्स मीन्स दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इट इज अ पार्ट ऑफ द जीन म्यूटेशन, और उसके अंदर क्या हुआ है, दैट इज अ चेंजेस हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो भी चेंज होगा और डीएनए डैमेज होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द जीन म्यूटेशंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। ओके, तो दैट्स मीन्स उसमें डिलीशन भी हो सकता है, कुछ पार्ट चला जा सकता है और कुछ एडिशन हो सकता है, तो ऑब्वियसली फ्रेम क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज अबाउट द फर्स्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Now next very important also here, that is one is gross mutation. Okay, very important, gross mutations means change in more than nucleotide, so that is very important, that is a gross change, gross mutations mean change in more than one that is a nucleotide। ओके, तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ग्रॉस म्यूटेशंस में मीन चेंज हो रहा है वहां पर, लेकिन चेंज कितने न्यूक्लियोटाइड का हो रहा है, दैट इज अ मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस म्यूटेशन। ओके, एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशंस also very important part here. Point mutations means change only one nucleotide, that is very important. Okay, change only one, that is very important, only one that is a nucleotide. So this is also, there are two types, very important, that is a point mutations, okay, point mutations and gross mutations. Okay, so that means gross mutations means particularly change in more than one nucleotide, okay, and point mutations means change only one nucleotide, that is called as the point mutation, more than one, so that is a gross mutation. So this is about the very important, ये तुम लोगों को questions पूछे जाते हैं, okay, so this is very important. Okay, next that is a substitutions mutations, it is a type of gene mutations, very important. Okay, replacement of one base pair of other. Okay, so that means purines replaced by, very important here, purines replace by purines, very important. Okay, and pyrimidines, that is a pyrimidines replace, that is a replace by pyrimidines, very important here, that means very important here, that means purines replaced by purines and pyrimidines replaced by pyrimidines, so that is very important here, that means T है, okay, very important, T के जगह पर एक तो C आ सकता है, रिप्लेस हो सकता है,
क्लियर है? तो दैट इज अ थायमीन एंड दैट इज अ साइटोसाइन, यू नो दी अबाउट। पर्टिकुलरली ये जीन डीएनए में दैट इज अ सीक्वेंस होता है, दैट इज अ एटी जीसी, फिर उसका उल्टा टीए, फिर सीजी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्यूरिन्स रिप्लेस बाय प्यूरिन्स, तो टी की जगह पर सी भी आ सकता है और पर्टिकुलरली टी सी की जगह भी, तो दैट इज अ प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन्स। ओके, देन पर्टिकुलरली ए, ओके, तो दैट्स मीन्स जी। ओके, तो दैट्स मीन्स ए की जगह पर जी आ सकता है। ओके, तो दैट इज अ पायरिमिडीन्स रिप्लेस बाय दैट इज अ पायरिमिडीन्स, तो दैट इज अ पर्टिकुलरली इट इज एग्जांपल ऑफ द replace substitution mutations, so that means also substitution mutation में purines replaced by purines. Okay, purines replaced by purine, that is a example of, that is a transition mutation, very important, that is a transition mutation. Okay, and particularly here very important, that is a B, that is a pyrimidines replaced by pyrimidine, that is a example of the वर्जन। ओके, मींस ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन में अपने को ये मिलता है प्यूरिन्स रिप्लेस बाय प्यूरिन्स एंड ट्रांसवर्शन दैट इज अ पायरिमिडीन रिप्लेस बाय पायरिमिडीन्स, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर अबाउट द सब्स्टिट्यूशंस म्यूटेंट। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब यही होता है कि टी के जगह पर सी आ जाएगा। ओके, एंड पर्टिकुलरली सी की जगह पर टी आ जाएगा, तो दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर ऑफ अदर, तो दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशंस म्यूटेशंस, और उसमें अपन ने देखा ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन के बारे में। नाउ नेक्स्ट म्यूटेशन जो अभी अपन ने बात की अबाउट द जीन म्यूटेशंस। ओके, नाउ स्टडी ऑन द पर्टिकुलरली दैट इज अ सेकंड, इट इज कॉल्ड एज द aberration mutations, very important also, that is a B, capital B, that is called as the sorry, this is a B में यानी कि A जो था that is a gene mutations, clear है B, that is a very important here, that is a aberration, very important, that is a aberrations mutations. Okay, here very important ये बात है कि अपने को इसमें क्या पढ़ना है, very important. Okay, समझ लो this is a chromosome. Okay, this is a chromosome, तो that means particularly एक तरीके से ये क्या है, तो that is a chromosome है. Okay, here that is very important, one more thing here, that means particularly I'll draw here, sorry, I'll draw here, particularly समझ लो this is a chromosome. Okay, this is a chromosome, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन द क्रोमोसोम पे समझ लो कि सीक्वेंस है. ओके, दिस इज ए बी सी डी एंड ई, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो हियर भी कुछ सीक्वेंसेस है, दैट इज कॉल्ड एज द ई एफ एंड जी. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये क्रोमोसोम्स है. ओके, उनके लोसाई पे दैट इज ऐसे सीक्वेंसेस रहते. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एबरेशंस म्यूटेशंस ये अपने को मिलता है ऑकर्स इन, एग्जांपल अपन दे सकते हैं इसका, तो दैट इज अ कैंसर. कैंसर वाले के जो भी कैंसर होता है, जिनमें कैंसर होता है पर्टिकुलरली उसके इसमें एबरेशंस म्यूटेशंस मिलता है. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली that is one part, that is a loss here. तो समझ लो ये दो तरीके के हो सकते हैं, that is first is terminal deletion and intercalary deletions. तो very important here. One is that is a terminal deletion हो सकता है, clear है, terminal deletions, and second it is a intercalary deletions. तो that means particularly टर्मिनल डिलीशंस मींस यहां से एक पार्ट लॉस हो सकता है, वन पार्ट और लॉस, क्लियर है. और इंटरकैलरी मींस पर्टिकुलरली ये बीच वाला, यानी कि टर्मिनल क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली टर्मिनल एंड से जो एक पार्ट डिलीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल डिलीशंस. ओके, और बीच में जो यानी कि एक पार्ट लॉस हो रहा है दैट इज अ इंटरकैलरी डिलीशंस. तो दैट्स मींस क्रोमोसोम वन पार्ट और लॉस इन द पर्टिकुलरली अबेरेशंस म्यूटेशंस. ओके, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली इट इज ऑकर इन, दैट इज अ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो बीच का एक आधी पोर्शंस रहेगा वो चले जाएगा तो इंटरकैलरी, और टर्मिनल का जाएगा तो दैट इज अ टर्मिनल डिलीशंस. ओके, तो दिस इज अबाउट द एबेरेशंस म्यूटेशन.
Okay, in the chromosomal aberrations also, that is a second, that is a chromosomal aberrations में first is deletions था, तो that is second उसके अंदर अपने को मिलेगा, that is a second इसके अंदर मिलेगा, that is called as the particularly duplications. That means very important here also. Duplications means what is exactly, okay, तो that means समझ लो ये क्रोमोसोम है, क्लियर है, दिस इज क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्लियर है, और यहां पर समझ लो ए बी सी डी ई, ओके, ई एफ जी, क्लियर है, और दिस इज कॉल्ड एज दी सेंट्रोमियर, यू नो दी अबाउट, ओके, 8 9 10 में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, देन और 11th में भी आपने क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा होगा, दैट इज द सेल, द बेसिक यूनिट लाइफ, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो ये है, और इसकी एक कॉपी बन रही है, क्लियर है, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक कॉपी बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज दी, ये भी अपन इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे, क्लियर है, और यही पे दैट इज ए बी सी डी ई, ओके, अभी डी है तो समझ लो इसका ही एक डुप्लीकेशन बन रहा है, ई एफ जी, क्लियर है, और एच, और अपन इसको भी यहाँ एच बोल सकते हैं, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगा, ओके, एक आधी सीक्वेंस भी यहाँ पर आ सकता है, क्लियर है, और वो उसका क्या बनेगा, दैट इज अ डबल ऑकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑकर ड्यू टू पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एडिशंस, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑकर्स ड्यू टू part of the chromosome in additions, so that is one is deletions, और also here क्या होगा, समझ लो D है, क्लियर है, तो that means particularly D की जगह पर और कुछ ऐड हो सकता है, और उसके इसमें डुप्लीकेशंस में, क्लियर है, तो that means occurs due to part of chromosome in additions, so that is called as the duplications, okay, also that is very important, another that is a third, that is called as the translocations, very important, that is a translocations, it is also very important part, that means particularly here crossing over seen in homologous chromosome, you know the about, particularly समझ लो ये क्रोमोसोम है, क्लियर है, दिस इज अ क्रोमोसोम, ओके, यहाँ पर क्रोमोसोम दैट इज, आई ड्रॉ हियर, सॉरी, आई ड्रॉ हियर, दैट्स मीन समझ लो ये क्रोमोसोम है, क्लियर है, और ट्रांसलोकेशंस का मतलब ये होता है कि समझ लो इधर भी एक क्रोमोसोम है, क्लियर है, और ये उनके सेंट्रोमियर, यू नो दी अबाउट, यहां से मटेरियल समझ लो ये इधर का इधर एक्सचेंज हो गया और इधर का इधर एक्सचेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रांसलोकेशंस, क्लियर है, तो समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई पार्ट है और यहाँ पर भी कोई पार्ट है, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, तो दैट इज द एक्सचेंज हो सकता है, तो दैट्स मीन्स इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन, ओके, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, in non-homologous chromosome crossing over called as the translocation reciprocal, okay, and particularly in the same इसमें that is a crossing over in homologous chromosome seen in homologous chromosome में अपन देखते हैं, क्लियर है, तो that is very important, duplications के इसमें एक अपन ने ट्रांसलोकेशन देखा, that is a exchange, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, जो भी सीक्वेंस होगा यहाँ का यहाँ पर चेंज हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली ट्रांसलोकेशंस, ओके, आल्सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलोकेशंस, ओके, ट्रांसलोकेशंस के दैट इज द एग्जांपल है हियर, वन इज दैट इज अ क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ओके, एंड अनदर दैट इज ये जो 22 फर्स्ट क्रोमोसोम दिखे गए थे पर्टिकुलरली, यानी कि उनके अंदर कुछ चेंजेस मिला था, क्लियर है, एक्सचेंज होने के बाद, तो एक दैट इज फिलडेल्फिया, दैट इज अ फिलडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है, फिलडेल्फिया इसलिए कहा जाता है कि वो प्लेस की जगह है, उसके वजह से उसको कहा जाता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, यानी कि एक्सचेंज होने के बाद समझ लो उधर 22 और इधर 9 ही है, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज एग्जांपल ऑफ दैट इज अ ट्रांसलोकेशन, दैट इज अ क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, एंड सेकेंड वो एक प्लेस पे वो डिस्कवर किया था, दैट इज अ 22 क्रोमोसोम ही थे वहां, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली फिलडेल्फिया, तो उसको नाम दिया गया दैट इज अ फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, प्लेस की जगह है वो फिलडेल्फिया, ओके, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि क्रोमोसोम, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी नाम से उसको दिया गया है फिलडेल्फिया, दैट इज अ फिलडेल्फिया. नाउ नेक्स्ट अबाउट दी दैट इज अ substitution, not a substitution exactly, inversions, about the inversions. Inversions here
also very important. That means particularly inversions also part of the that is a chromosomal aberrations. अभी अपन क्या देख रहे हैं, that is a chromosomal aberrations के बारे में, very important here. तो that means particularly अपन ने उसमें क्या क्या देखा है, exactly chromosomal aberrations में देखा है particularly translocations and deletions and additions वाला. ओके तो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इन्वर्शंस इट इज अ डी और मैं उसको 4 बोल सकता हूँ. क्लियर है. Inversion, that means there are 2 types, that is one is paracentric, okay, one is paracentric and another it is called as the pericentric. ओके अभी हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलरली समझ लो. फर्स्ट बात करेंगे अपन दैट इज अ पैरासेंट्रिक के बारे में. ओके समझ लो दिस इज अ क्रोमोसोम. क्लियर है. दिस इज ये एक तरीके से क्रोमोसोम है और तुम लोग जानते हो पर्टिकुलरली अटैचमेंट वहां पर एक पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर. ए बी सी डी ई इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस है और यही से एफ वेरी इंपॉर्टेंट एफ जी और एच है. क्लियर है. समझ लो ये यहीं से टूट गया. क्लियर है. और टूट गया और पर्टिकुलरली वही के वहीं पर वो सी डी के जगह पर डी सी आ गया. क्लियर है. तो दिस इज कॉल्ड एज द पैरासेंट्रिक इन्वर्शंस. ओके एंड इन दी पर्टिकुलरली दैट इज अ पेरिसेंट्रिक. ओके पेरिसेंट्रिक के बारे में अपन बात करते हैं. तो दैट्स मीन समझ लो दिस इज अ क्रोमोसोम. ओके तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हो सकता है अभी ये ई also इसका सीक्वेंस है ए बी सी डी ई. ओके दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एफ जी एच. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हो सकता है कि इसमें क्या होगा कि ये एफ इधर जा सकता है और ई इफ इधर आ सकता है यानी कि वही चिपक जाएगा. बट क्या होगा दैट इज अ रोटेट. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्शन दैट इज अ पैरासेंट्रिक एंड दैट इज अ पेरिसेंट्रिक. ओके इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द दैट इज अ अबेरेशंस म्यूटेशंस. तो दैट्स मीन्स देखो न्यूक्लियोटाइड का कैसे वो सीक्वेंस चेंज हो रहा है. क्लियर है. अब इसमें इन क्रोमोसोम डीएनए रहता है यू नो दी अबाउट और एटी सीक्वेंस रहता है दैट इज अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो देयर प्रेजेंट. तो इनमें चेंजेस होता है. ओके तो दिस इज अबाउट द इन्वर्शन इज अ पार्ट ऑफ द एबरेशंस म्यूटेशन. Now next about the that is the genomic mutation. You know the about the 3 types of genetic gene mutations. So that is the 3rd type of gene mutations. That is a genomic mutations. Genomic mutations that means particularly having one less gamete having one less chromosome or 2 more chromosome. तो दैट्स मीन्स देयर आर 2 टाइप. फर्स्ट इज दैट इज एनिप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी. ओके तो एक एक के बारे में अपन पहले पढ़ते हैं. दैट इज एनिप्लॉइडी. एनिप्लॉइडी मीन्स पर्टिकुलरली इन एनिप्लॉइडी मीन्स एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एनी ओके इन एनिप्लॉइडी एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसजंक्शन ऑफ 2 क्रोमोसोम यानी कि 2 क्रोमोसोम में डिसजंक्शन. यू नो दी एनाफेज. क्लियर है. of homologous pair so that one gamete have one extra chromosome. Clear है. and other gamete have one less number of chromosome. तो that means particularly समझ लो anaphase होता है that is anaphase that is mitosis और meiosis आपने पढ़ा होगा उसके अंदर. that means particularly ये एनाफेस है. चलो ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम है ये इसका डिजंक्शन हो गया और यू नो दी बराबर वो एनाफेस में एक क्रोमोसोम जाते हैं और एक दूसरे तरफ क्रोमोसोम जाते हैं. क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो एक के पास कम गया तो दैट इज n-1. एक के पास ज्यादा गया तो n+1. क्लियर है. तो दैट्स मीन्स गमेट हैविंग मोर देन 1 तो दैट इज वो प्लस में चले जाएगा एंड गमेट हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज एनिप्लॉइडी. तो दिस इज अ डिसजंक्शन. तो दैट्स मीन्स ये किसके वजह से हो रहा है दैट इज अ जीनोमिक म्यूटेशंस. तो वहां पर कुछ चेंजेस आएगा. क्लियर है. कुछ डिसऑर्डर होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी पर्टिकुलरली एनिप्लॉइडी. ओके ऑल्सो दैट्स मीन्स यहाँ पर सेट बराबर गया तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे वो बराबर चले गए तो यहाँ पर डिसजंक्शन हुआ. क्लियर है. बट हियर समझ लो ऊपर में 3 क्रोमोसोम जाना चाहिए था और 2 ही गए. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो गया और पर्टिकुलरली यहाँ समझ लो एक क्रोमोसोम ये ऐसा है दूसरा ऐसा और ऐसा. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वहां पर मोर देन 1 है और यहाँ पर लेस है.
तो नॉन डिसजंक्शन के फॉर्म में ऐसा होगा, डिसजंक्शन के फॉर्म में सेम होगा। यू नो द एनाफेज प्रोसेस में ये बताया जा, यानी कि एनाफेज प्रोसेस में ये होता है, क्लियर है। तो एक तरीके से दैट इज अबाउट द एनिप्लॉइडी, और एनिप्लॉइडी इज अ पार्ट ऑफ द जेनोमिक म्यूटेशंस। ओके सम also that is a conditions देख लेते हैं इन दी पर्टिकुलरली एनिप्लॉइडी में, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो एक लेस गमीट है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर दैट इज कंडीशन कॉल्ड एज द मोनोजोमिक कंडीशन। एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है अपने को, ऑल्सो दैट इज अ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके तो n प्लस यहाँ पर 2n-2 है, क्लियर है, लेस देन 2 क्रोमोसोम है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली न्यूक्लियोजोमिक कंडीशंस। तो यानी कि कंडीशंस के हिसाब से हाउ मेनी chromosomes are present and how many less chromosome are present and how many more chromosome are present. Okay, here that is a एक ज्यादा है तो दैट इज कंडीशन कॉल्ड एज द ट्राइसोमी, अपने को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस इनहेरिटेंस में, मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो दैट इज अ ट्राइसोमिक कंडीशंस, एग्जांपल एक डाउन सिंड्रोम एंड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, दैट इज पर्टिकुलरली इट इज एक तरीके से दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके n प्लस यहाँ पर मोर देन 2 यानी कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा के है, दैट इज कॉल्ड एज द टेट्रासोमिक कंडीशन। तो दिस इज एनिप्लॉइडीज एग्जांपल, यानी कि पर्टिकुलरली लेस हो गए, लेस अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम एंड पर्टिकुलरली मोर अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम, तो दैट इज दे पर्टिकुलरली लीड इनटू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो दैट इज द कंडीशंस हो सकती है, तो हमेशा ध्यान में रखना मोनोजोमिक कंडीशन में लेस देन 1, न्यूक्लियोजोमिक में लेस देन 2, क्लियर है, यानी कि 46 से वो थोड़ा कम बनेंगे तो दैट इज अ कंडीशंस आएगी, और 46 से ज्यादा बने तो दैट इज अ कंडीशन, तो दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर पर्टिकुलरली वी आर स्टडीइंग इन द चैप्टर दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। Okay, now about the euploidy, also it is a part of the genomic mutations. Okay, any change of the number of chromosome is the multiple number of chromosome, okay, in the basic set. Okay, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक बेसिक सेट है 46 वाला, क्लियर है, उसके अंदर कोई चेंजेस आता है तो देयर आर 2 टाइप्स आ सकता है यूप्लॉइडी में भी, ऑल्सो दैट इज अ फर्स्ट इज दैट इज अ हैप्लॉइड में मिल सकता है अपने को, क्लियर है, एंड सेकेंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तो पॉलीप्लॉइडी में ज्यादा हो सकता है बट ये डिफरेंट इसमें होगा, क्लियर है, समझ लो ए है और बी भी है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच में अपने को क्या मिल सकता है, एनी चेंज नंबर इन बेसिक सेट में ये डिफरेंट होगा, क्लियर है। बट हैप्लॉइड में देयर आर 2 टाइप्स के मिलते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड एज द ऑटोप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज sorry, this is not a haploid part, this is very important here. Okay, this is very important here, particularly this is a part of the polyploidy. Polyploidy में there are 2 parts. Okay, so that is one is autopoly, that is a autopolyploidy, very important here, and that is also second that is called as the alloploidy. तो that means there are 2 here. important ये है कि एक ही इसमें आएगा, तो दैट इज n से 2n, यू नो दी कंडीशंस। ओके, बट पॉलीप्लॉइडी में देयर आर, एक तो है ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड अनदर दैट इज ऑलोपॉलीप्लॉइडी। तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज ऑटो पॉलीप्लॉइडी मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो कि एक टाइप का क्रोमोसोम है, क्लियर है, तो ऑब्वियसली उसका क्या हो सकता है, नंबर बढ़ सकता है, क्लियर है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ सकता है, बट सेम इसका, क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो मींस सेल्फ। ओके, बट एलोप्लॉइडी में क्या हो सकता है, एक तो ए है लेकिन अलोंग विद दी ए के साथ दैट इज अ बी भी आ रहा है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसका नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ऑब्वियसली सेम इसमें हुआ, तो दैट इज ए, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एंड इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एलोपॉलीप्लॉइडी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एक आधी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग, दैट इज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स 23 है इधर एक साइड में और इधर है 24, तो दिस इज पर्टिकुलरली, और इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया, दैट इज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हो सकता है कि मुझको 2 सेट सेम मिल सकते हैं, तो दैट इज एलोप्लॉइडी में, एलोप्लॉइडी में, तो दैट इज अ 23 इधर मिलेंगे, 23 इधर, 24, तो दैट इज अ डिफरेंट। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द यूप्लॉइडी।
Okay, now next about the mutagen, very important, that is a mutagen. इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, that is very important. One is that is a physical and another it is a chemical. Okay, here very important, one is chemical and one is that is a physical. Okay, that is a chemical and physical, very important here. That means particularly first scientist थे that is a Mueller, okay, जिन्होंने एक्सरे यूज किया था फॉर द रेडिएशंस. ओके, रेडिएशंस मींस particularly दो तरीके के, दैट इज फर्स्ट इज हो सकता है दैट इज यानी कि फर्स्ट है दैट इज आयोनाइजिंग. ओके, आयोनाइजिंग में दैट्स मींस वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन आयोनाइजिंग, सो दे दैट इज अ एक्सरे. ओके, आल्सो दैट इज अ gamma rays, clear है, x-ray that is a gamma rays, then alpha rays, very important, alpha rays. Okay, and also that is a beta rays. तो that means particularly ये so many types के क्या है, ionizing that is a ionizing agent है. अपन बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट दैट इज अ फिजिकल. ओके, तो दैट्स मीन्स कॉजेज द कैंसर. क्लियर है, एक तो कैंसर हो सकता है, ब्रेक दी क्रोमोसोम हो सकता है, इन यानी कि मुलर ने जो यूज किया था दैट इज एक्सरे का किया था. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, देन आल्सो सम हो सकते हैं दैट इज अ नॉन आयोनाइजिंग होंगे, दैट इज अ नॉन आयोनाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. तो इसमें दैट इज अ अल्ट्रावायलेट रेज. ओके, दैट इज अ अल्ट्रावायलेट रेज. आल्सो थायमिन डाइमर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ that is a thymine, very important, thymine, sorry, that is a thymine dimer. Okay, very important here. Also thymine causes particularly, इसको तुम लोग pyrimidine भी बोलते हो, क्लियर है, that is called as the pyrimidine, यानी कि पर्टिकुलरली पायरिमिडिन पे कॉजेस करेगा, दैट इज अ थायमिन डाइमर. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए होता है, क्लियर है, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए डैमेज हो सकता है, क्लियर है, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए डैमेज, देन पर्टिकुलरली डीएनए रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है. तो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट दैट इज अ फिजिकल, यानी कि कंपोनेंट की वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं, क्लियर है. इसमें तो मैंने बता दिया दैट इज अ कॉजेस कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये ब्रेक भी कर सकते हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम. तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो फिजिकल में अपन ने देखा रेडिएशंस के बारे में. साइंटिस्ट को याद रखना, दैट इज अ मुलर साइंटिस्ट था जिन्होंने एक्सरे का यूज किया था. ओके, तो दिस इज वेरी important about the physical component or a physical agent. Okay, this is about the first physical components, physical agents. Next, chemical mutagen. Okay, chemical mutagens में both replicating and non replicating DNA पे जो अफेक्ट करता है वो है नाइट्रस एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए में तब भी अफेक्ट करेगा, दैट इज अ नाइट्रस एसिड, एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए होगा तभी भी वो अफेक्ट करेगा. देन ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए पे जो अफेक्ट करता है दैट इज एक्रिडाइन डाई एंड बेस एनालॉगस, वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, तो यानी कि ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए में पर्टिकुलरली एक्रिडाइन डाइस एंड पर्टिकुलरली बेस एनालॉगस. तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रस एसिड, ओके, नाइट्रस एसिड क्या कर लेता है पर्टिकुलरली, ये इसका चेंज हो जाएगा, क्लियर है, सीक्वेंस का चेंज हो गया तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली क्या कर देगा, एक सीक्वेंस का चेंजेस हो जाएगा, तो दैट्स मीन्स एक ही जगह पर सी आ जाएगा. पेयरिंग कैसी होनी चाहिए पर्टिकुलरली, ATCG, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ATCG, तो दैट्स मीन्स एक ही जगह पर C आ जाएगा, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये कन्वर्ट हो जाएगी अबाउट दी दैट इज अ नाइट्रस एसिड. तो दैट इज द ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए में काम करता है, बेस एनालॉगस एंड पर्टिकुलरली एक्रिडाइन डाइस, क्लियर है. ऑल्सो उसमें एक एग्जांपल देते हैं अपन, दैट इज अ नाइट्रस एसिड. ओके, सो मेनी एग्जांपल्स है यहाँ पर. Okay, also that is the example nitrous acid के बारे में हो गया. Second example about the that is the acridines. Okay, acridines then also called as the proflavin, क्लियर है. इसको जिब्रेश म्यूटेशंस कहा जाता है. ओके, अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे. अबाउट द फर्स्ट इज दैट इज ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए, दैट इज द एक्रिडाइन डीएनए, एक्रिडाइन डाइस. ओके, एक्रिडाइन डाइस के अपन बाद में बात करेंगे अभी.
Okay, now very important here, that means particularly acridine dyes, okay, also that is a gibberish mutations कहा जाता है, प्रोफिलिन also ये affect करता है, okay, here also that is a एनालॉगस, ओके, अपन ने एनालॉगस के बारे में बात किया है, क्लियर है, दैट इज ओनली रेप्लिकेटेड डीएनए में ये क्या करेंगे, पर्टिकुलरली अफेक्ट करेंगे, ओके, तो नेचुरली में एक तो है दैट इज अ 5 मिथिल साइटोसाइन, okay, and also that is a 6 methyl purines, but artificially भी हो सकता है, that is a 5 bromo or 2 amino purines and 5 bromo uracil, okay, so that means particularly here very important, okay, तो दैट्स मीन्स 2 अमीनो प्यूरिन्स एडिनाइन, ओके, उस पे अफेक्ट हो सकता है, 5 ब्रोमो यूरासिल थाइमिन, तो थाइमिन पे अफेक्ट हो सकता है, अबाउट द आर्टिफिशियली थाइमिन एंड एडिनाइन, एंड नेचुरली दैट इज अ 5 मिथिल और अ साइटोसाइन और अ 6 मिथिल प्यूरिन्स, तो ये अफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट किसमें, तो नॉ ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ध्यान में रखना थोड़ा।